Welcome to the C programming web lectures. So we see that the university questions that have been raised on the topic recursion. One point to be noted, in every paper there will be a 10 or 6 marks question on recursion compulsory with a simple program and the theory about the recursion. So it is a confirmed question in every paper. We are taking last four papers and saying a pattern of the question. We start with the December 2019 question paper. The question came for 10 marks. The question was, explain the recursion and its advantages. Write a recursive C program to find a factorial of a given number. The same program what we have done in an example. I have again written a program to make it understand a complete program. We start with the main function, giving a header. After coming to a main function, what will happen? We'll get a user because they have sent a get a input from the user. So what we are doing? We are getting a user input from the user, a number for which the factorial has to be calculated, like the factorial of 4 that has to be calculated. Suppose user enter a number 4 over here. Now we are calling a function fact where the number 4 will be passed. Number 4 will be passed as a parameter, as a function call, and the function call will take the control to the fact function. Will take a control to the fact function. In the factorial function, because it is a recursion has to be used, long factorial int n. Int n indicate the one parameter will be accepted, long int indicate the return data type will be long. If n is equal to 0, the factorial for 0 is 1, the factorial of 1 is 1. Either you can write n is equal to 1, it will get all. This is a base condition. It will return 1. What we have? This is a base condition. Else, if the n is not equal to 0, what will happen? It will return n into factorial of n minus 1, what we have calculated. The n factorial is equal to n into n minus 1, n into n minus 1 factorial. Same thing happens, and the process repeats till it calculates the factorial of n, the value 1, then come to 2, 3, 4, and then the 24, and that value will be passed to the calling function. The calling function will print the value of a fact, the number 24 and the fact. Hence that is a simple program what we have done. Already we have explained the logic for the C. In May 2019 the question was again for a 10 marks. What is recursion? Write a program using a recursion to calculate a value of z which is equal to x raised to y. Indicate that we have to take a value of x, that is a base, and we have to take a power value of y from the user, right? And after taking a value, we have to run our recursion y times and multiply with it base to get the value of z. So the program will take a main function first. We will understand. The main function, enter a base, the whatever base area, enter the base value will be scanned. Enter the power, a positive number, the power will be scanned and stored in A. Now we are calling a power function by passing a base and A. Suppose user enter 3 and the power value he enter 3, which means what we have to calculate? We have to calculate 3 raised, that is our z, 3 raised to 4, that is what the expected in the program. So the power function will be called, whenever the power function is, the control get transferred to the, so power function definition declares int, declares that it will be returning a integer power with taking a 2 parameter as the input, base and a, that is the power. If a is not equal to 0, जब भी a is raised to 0 हो जाएगा तो वैल्यू 1 हो जाता है ना, हाँ तो नहीं है तब तक, इन दैट टाइम वी हैव टू रिकॉल इट। अभी सर बताओ सर इसमें रिकर्शन कैसे होता है? विल टेक अ एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, यूज़र ने इंटर किया 3 और पावर दिया 4,
तो यहाँ पे पावर फंक्शन क्या वैल्यू पास करेगा, 3 into 4, राइट. ये पास करेगा यहाँ पे एट दिस पॉइंट. दैट विल बी एन इनपुट टू 3 and 4 विल द इनपुट फॉर द फंक्शन. फंक्शन के अंदर क्या पहला बेस कंडीशन चेक होगा. क्या चेक होगा कि अभी देखो बेस कंडीशन क्या चेक होगा, देखो 3 into पावर ऑफ 3 कॉमा a माइनस 1, ये कितना है 4, तो ये कितना हुआ 3. तो ये पहला फंक्शन रन हुआ, राइट. फंक्शन ने फंक्शन को कॉल किया तो ये पावर को वापस कॉल किया. जब भी ये पावर को कॉल करेगा तभी क्या होगा देखते हैं, बेस इंटू, क्योंकि 3 बेस ही है ना, बेस इंटू, क्योंकि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड लाइन है, रिटर्न बेस इंटू पावर बेस कॉमा e माइन. तो a का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पावर ऑफ 3 minus 2. वापस दिस फंक्शन विल कॉल वन मोर फंक्शन रिकर्शन, तो 3 into पावर ऑफ -1. अब इज a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इट विल अगेन कॉल द फंक्शन. तो वो फंक्शन क्या रहेगा 3 into पावर ऑफ 3 minus 0. जब भी a इक्वल टू 0 हो जाएगा इट विल गो इन एल्स पार्ट एंड गिव अ रिटर्न वैल्यू. मतलब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न देगा 1 देगा. अभी यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो जाएगा. द 1 इज गिवन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, रिटर्न किया ना. ओवर हियर व्हाट विल बी द कैलकुलेशन देन, जब वैल्यू आया तो 3 into 1 आया, क्योंकि 1 ये फंक्शन का वैल्यू 1 मिल गया. तो 3 into इज इक्वल टू 3. तो ये फंक्शन ने इसको कॉल किया था, this function call this function, right. तो उसका वैल्यू क्या है 3, दैट विल बी रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन. तो कॉलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा 3 into वैल्यू क्या आया 3 इक्वल टू 9. अभी ये फंक्शन किसने कॉल किया था, ये वाला फंक्शन सर इसने कॉल किया था. इट विल गिव अ वैल्यू रिटर्निंग टू दैट फंक्शन. तो वो कैसे होगा, अगेन 3 into वैल्यू क्या आया 9, कितना हुआ 27. सर ये फंक्शन किसने कॉल किया था, सर इस फंक्शन ने कॉल किया था. तो 27 वैल्यू उसको रिटर्न जाएगा. नाउ दिस फंक्शन विल लर्न 3 into वैल्यू क्या है रिटर्न 27 विच इज इक्वल टू 81. किसने कॉल किया उसको, सर ये मेन फंक्शन है. तो मेन फंक्शन को पास क्या करेगा इंटीजर वैल्यू, रिजल्ट क्या पास करेगा, देखो रिजल्ट है ना यहाँ पे स्टोर किया हुआ. तो रिजल्ट में क्या आएगा 81 एंड दैट इज 81 दैट विल बी गेट प्रिंटेड फॉर अबव इट, दैट इज z इज इक्वल टू 3/4 विच इज इक्वल टू 81. ईजी है. तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि रिकर्शन में हुआ क्या, दिस इज टू बी अंडरस्टूड कि रिकर्शन में हुआ क्या. यू कैन सी द प्रोग्राम एंड आल्सो डू इट बाय योरसेल्फ. अंडरस्टूड, पक्का क्लियर है ना. ओके, यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिसंबर 2008 4 मार्क्स के लिए आया था, अभी तक 10-10 मार्क्स के लिए आया था. ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ही आया था, फर्स्ट क्वेश्चन था पेपर का. व्हाट इज रिकर्शन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड x रेज़ टू y यूजिंग रिकर्शन. सेम प्रोग्राम है ना जो अभी हम लोगों ने किया, एग्जैक्ट सेम प्रोग्राम है. मेरे को सेम प्रोग्राम रन करना है, कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए पूछा था. तो फाइन यू हैव टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम. We'll go to the next question. अभी ध्यान रखना ये क्वेश्चन था. May 2018 again 10 marks. What is recursion? Write using a recursion to find a sum of array element of size n. हम लोगों ने बताया array दिया है, array के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उनको अगर सबमिशन करना है तो फॉर लूप डालो, array का i का वैल्यू लो और उसका सबमिशन कर दो. ईजी है ना. सेम थिंग वी हैव टू डू इट थ्रू अ रिकर्शन, एग्जैक्ट सेम. पर यहाँ पे आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, अरे एलिमेंट, नया अरे का वैल्यू और कब तक करना है, कौन से इटरेशन तक करना है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये रिपीटेडली होते जाएगा ताकि बेस कंडीशन कहाँ पे रुके. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव आई बीन असाइनिंग यू एज अ होमवर्क. करके तो देखो, नहीं हुआ तो पास ऑन द सोल्यूशन अगेन, बट इट इज़ ईजी. ये आपका होमवर्क है, ट्राई आउट करो कि रिकर्शन से ऑफ योर ओन लॉजिक व्हाट विल हैपन. एज वी नो दैट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन
as we see the university pattern, we are always getting one question on recursion. They are asking on the program. One point has to be noted that every time the program won't be the same. मतलब फैक्टोरियल आया तो फैक्टोरियल वापस नहीं आएगा, रिकर्शन का भी अरे ऑफ एडिशन आया तो वो वापस नहीं आएगा, बट द प्रोग्राम विल बी सिमिलर. सिर्फ ऐसा आएगा गिवन अ सीरीज ऑफ ऑड नंबर डू द समेशन यूजिंग रिकर्शन. तो आपको पहले क्या चेक करना है, नंबर इवन है कि ऑड है तो उसका रिकर्सिव फंक्शन में एडिशन करना है. एनीथिंग मतलब दे विल जस्ट वी विल अंडरस्टैंड यू कैन यू राइट अ रिकर्सिव फंक्शन फॉर इट. देखो, इफ़ यू डोंट नो द रिकर्शन, फर्स्ट राइट अ प्रोग्राम इन पेंसिल बाय यूजिंग अ लूप्स, वाइल लूप, फॉर लूप, जो भी है. In that loop you understand what is a sequential execution, then you can design a recursive execution. Recursion is used to do a work easy, complex नहीं है वो. मैंने बताया आप लाइन में खड़े हो, सपोज 100 people लाइन में खड़े हो, आपका 99th नंबर है and you want to know how many people are in front of you. आपको अगर फॉर लूप यूज़ करते you have to count till फर्स्ट पर्सन एंड देयर आपको काउंट मिलेगा, इंक्रीमेंट द काउंटर वैल्यू. तो कितनी बार रन हुआ, 100. पर अगर रिकर्सिव यूज करते हो तो यू आर वर्किंग ओनली वंस. व्हाई, व्हाट इज योर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे नहीं पता. दैट पर्सन आस्क द नेक्स्ट पर्सन. तो ये जो एग्जाम्पल आपने देखा, दैट इज मेक यू अंडरस्टैंड द रिकर्शन इज ईजी एंड इट हैज़ बीन डिजाइन टू मेक अ सोल्यूशन ईजियर. ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर समझो, कभी तक वो लूप तक जाएगा और जो रिटर्न वैल्यू देगा ना वो इम्पॉर्टेंट है. तो प्लीज़ ट्राई आउट विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मे 2018. क्या पता नेक्स्ट टाइम आते समय अरे अभी यहाँ पे देखो रिपीट हुआ था, रिपीट क्वेश्चन था पर 10 मार्क्स के लिए था, रिपीट हुआ था, लग था. अच्छा क्या पता हमें रिपीट भी आ जाए. फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, ये रिपीट आते हैं, कहीं ना कहीं तो आएंगे. So please try out this as a homework. Ensure that if you have any doubt, please ask the doubts through your CR. You can mail me, you can message me. By any means, you can contact me. Okay? Thank you.